Practice for GATE 2022 with the Unacademy All India Mock Test for GATE 2022. Curated by top educators, based on the latest exam pattern covering the entire syllabus. Detailed performance reports with All India rank. Every Sunday starting January 2nd. Enroll now. Hello, good evening all. My name is Arvind. I have done my bachelor's degree from IIT Kanpur in civil engineering, and I am currently enrolled as an assistant executive engineer in Roads and Buildings Department of Andhra Pradesh. I have secured an All India rank of 41 in GATE 2021 in civil engineering department, and an All India rank of 91 in GATE 2020 in civil engineering department. And I cracked the APPSC AEE examination, and I'm currently shortlisted for the interview in ESC 2021. Please join us on our Telegram channel, that is Unacademy MyGate CE. Here you can get the notifications for the upcoming lectures on YouTube and the preparatory material for your GATE examination. Here are the Unacademy packages. The first one is the Plus subscription. Here you can get the live classes which were taught by the top educators who have aced the corresponding examinations which you are preparing for. And there will be weekly tests based on the syllabus covered. You can check your performance and where you stand regarding your aim. And the courses were designed in a well-structured manner in such a way that the course will be taught from basics to the in-depth concepts so that everybody can understand in a uniformly increasing level. And there will be crash courses which will be the brief explanation of the subject. This will be very good for your revision before the examination, and these courses were particularly designed for quick revisions for the students just before the exams. And there is a rank improvement batch where you will be solving many number of questions to get familiar with the exam pattern and the type of questions they expect. And you can get the unlimited access for the live classes and all. After the class has ended, after live session has ended, you can rewatch the video as many number of times as you can. For suppose you have difficulty understanding any concept, or you have lack of focus at a certain instant of time, you can just rewind it and clarify it there itself. And if you move into the bigger picture, that is Iconic subscription, here you will be getting a personal coach with whom you can have one-on-one interaction regarding your preparation strategy, and he will be your study planner. Now you can get your customized study plan and you can track your performance on a frequent basis. And there will be study booster sessions to receive essential guidelines through regular workshops. And there will be personalized test analysis for your weekly tests, which I have explained in the Plus subscription. In your personalized test analysis, you can get the in-depth analysis of the test in section wise and the type of question and where it has come from and all. And there will be preparatory study material, that is specialized notes and practice sets. And there will be dedicated doubt clearing sessions by the top educators for yourself. And these are the special class features from the Unacademy. The classes were interactive and live. You can attend the class, participate in the live chat and get your doubts clear all during the class hours itself. And there will be posts created by the educators for the learners purpose, so that you can test yourself by answering the questions in between the class, whether you understood the questions or not. You can just respond the polls for better understanding of the topic. If you have any difficulty understanding, you can just use the option raise a hand and you can talk to the educators in live, and you can clear the doubts there itself. And by pushing the bell icon, you will never miss a class. Get notified for lessons, upcoming courses and recommendations
curated just for you. And regarding the lecture notes, you can download the lecture notes and get access to recorded sessions of live classes. You can revisit the important topics whenever you need it. Anywhere, anytime, you can attend the live classes, participate in the live chat, and get your doubts cleared all during the class hours itself. You don't have to spend time after the class trying to get your doubts cleared. And please check out our brand new updates on Unacademy Ask a feature. This is a faster and a better way to solve your doubts, designed for better convenience of yourself. For GATE and ESC, these were the new things that were introduced. You can upload up to 3 questions at a time. That is, while your first question is being solved, you can upload 2 more questions so that you don't need to wait. And you can get your solutions in your preferred language. You can see the options. There are Hindi, English, and English. Soon there will be more. And how can you do that? Just click the picture of the question and crop it and submit it your question, and thus your question will be answered in there. Once again, the live mentoring product, that is one-on-one live mentoring with the new iconic subscription. Here you can experience the personalized learning like never before with our expert mentors. You can discuss your doubts, clarify your concept, and enhance your exam strategy with just a finger click. And here are the our subscription prices. The plus subscription goes at 2,704 rupees per month if you opted for 1-year plan. And if you prefer the iconic subscription, here you will be getting one-on-one coach, personal guidance, and a study planner, and your test analysis and all. That you can avail it for just 4,704 rupees per month in a 12-year subscription. Or if you want to choose for the long term, whether you are a college student from 3rd year or 4th year and all, this will be better for you so that you can complete your syllabus in a study pace manner. Here the 24 months you can just avail it for 1,967 rupees per month in plus subscription. For iconic you can avail it for 3,467 rupees per month, and you can get 10% discount on the above prices by using the code described below, that is ARVD10. And there are already my special classes going on the Unacademy platform. You can visit whenever you want. These are absolutely free. And there is a new batch that is just started for GATE and ESC 2023, not 22, 23. And this will be in a bilingual. This is a bilingual session that is will be taught in Hindi and English as well. This is batch 2. Just started from the December 15, that is just 10 days before. And this was started with the strength of materials by Shobhit Srivastava sir. And here are the top faculty who were teaching the above batch. And this is one more important announcement for all the GATE aspirants. Our All India Mock Test Series for GATE 2022 will be available from January 2nd. Complete your final revision for the GATE with All India Mock Test for GATE 2022. These will be available from January 2nd to 30. And important thing is these were absolutely free. You don't need to pay to enroll in the test series. So that thousands of students will get the opportunity to test themselves in the all India level. So you can check your performance and where you stand at the moment. The questions were curated by the top educators. The purpose of the test series is to touch the overall concepts of the GATE, so that your preparation as well as the revision were also kept in mind. And you can experience the actual exam like setting. You can get the all India ranking. As I said before, you can compare yourself where you stand at the moment. You can identify the areas of improvement. There will be many silly mistakes regarding unit conversions and the formula, the simple terms confusing in the formulas and all. You can just rectify them before the final examination. And this is again boost your readiness for GATE CA 2022 with our top educators. That is from every Sunday from January 2nd to 30. Means there will be total 5 tests available on every Sunday. These were the faculty who were creating the test series.
Regarding the GATE and ESC exam 2022, we'll just go into it. Subject wise weightage, here it is. General aptitude corresponds to 15 marks. This will be the maximum weightage, and soil followed by soil mechanics, which will be the most important subject in the technical aspect of civil engineering. Here, since the GATE and ESC prelims are within just 7 days of span, I will try to share my experience, which will be very helpful. And I have scored the decent rank in GATE 2021, and I am currently selected for the interview for ESC 2021, and I have cleared the prelims with a good score from my correction perspective from the coachings and all. So I will be sharing the tips regarding both the exams kept in mind. Okay. So not only in GATE, and also ESC examination, the soil mechanics will have a utmost important weightage. So यहाँ पे आप बात करें तो गेट में तो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट है सॉइल मैकेनिक्स, एंड आप ESC प्रीलिम्स में भी देखिए तो उसमें भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंस दिया जाता है के साथ साथ गेट के साथ साथ. एंड वन मोर थिंग, खाली प्रीलिम्स के लिए नहीं है, मेंस में भी इसका अच्छा खासा वेटेज होता है. This will be asked in the paper 2 of the ESC mains examination. Your paper 1 of ESC main examination pertain to the structural part, that is structural analysis, strength of materials, steel structures and reinforced concrete, building materials and CPM part. And next followed by mathematics. देखिए बहुत लोग टेक्निकल की इम्पोर्टेंस की वजह से जनरल एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स नेग्लेक्ट कर लेते हो. आपको लेकिन ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर आप मैथमेटिक्स गेट लेवल पे सॉल्व करके गए हैं, आपको ESC का प्री भी अच्छा खासा होगा. उसका जीएस पार्ट जो है उसमें मैथ्स और एप्टीट्यूड दोनों मिला के पिछले साल 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड, which was total 10% of paper 1 and paper 2 combined. So that is a very huge weightage. So आप इसको नेग्लेक्ट मत कीजिए. आपको एप्टीट्यूड के लिए स्पेशली तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है. जब आप प्रिपरेशन के लिए बैठते हो एनी टाइम शुरुआत करते हो, तो आपको तब क्या करना चाहिए, आप पहले 4-5 क्वेश्चन एप्टीट्यूड की सॉल्व कीजिए. उसके बाद आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं, जो भी प्रोसेस आपका चल रहा है वो कीजिए. आपको 4-5 क्वेश्चन करने में कितना देर लगता है, मैक्सिमम ऑफ 10 to 15 मिनट्स, उसमें आप आराम से हो जाएगा. अभी भी आपको अराउंड 40 डेज के टाइम है, 40 to 50 डेज के टाइम है. अगर आप रोज़ चार क्वेश्चन भी कर दिया तो आपको 1 महीने में पूरा एप्टीट्यूड ख़त्म हो जाएगा. एंड मैथमेटिक्स का आपको करना है कि नोट्स अच्छे से रिवाइज करना है. उसका सॉल्व एग्जाम्पल जो है आप पहले वो सॉल्व कीजिए. उसके बाद आपको क्या करना है, एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए. आप 1-2 बार उसको रिवाइज कीजिए. आप अगर उसको अच्छे से पढ़ लिया एंड समझ लिया, आपको खाली एक पेपर में उसका पूरा चैप्टर आ जाएगा. मतलब मैंने भी बना लिया था, तो मेरा ऐसा है कि मैट्रिसेस एक पेपर में आ गया, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन भी एक पेपर में आ गया. खाली कैलकुलस का 2 पेपर लगा. मतलब आप 6-7 पेपर में ही आपका एक मैथमेटिक्स का शॉर्ट नोट्स बन जाएगा. एंड आपको उसको रिवाइज करने के लिए 1-2 घंटे से ज़्यादा भी नहीं लगेगा. तो काफ़ी फ़ायदा होगा आपके लिए. खाली इसके लिए भी नहीं है, प्रीलिम्स के लिए भी मैं पर्सपेक्टिव में लेके बोल रहा हूँ. तो दिस इज ऑल यू विल डू द मैथमेटिक्स. हमने स्पेशल क्लास में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में देखा था एंड सॉइल मैकेनिक्स के बारे में देखा था. एंड अब आगे बढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में. ये जो वेटेज है आपका यहाँ पे दिखा दिया था, ये खाली गेट का वेटेज है सब्जेक्ट वाइज. आप जब भी रिवीजन कर रहे हो, अगर कोई आपके माइंड में खाली गेट देना है तो इसके पर्सपेक्टिव में जाइए. आप रिवीजन करने में पहले आपको कंप्लीट करना है सॉइल मैकेनिक्स, एनवायरमेंटल, ट्रांसपोर्ट, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड. मैंने बोला था ना, डेली आपको 4-5 क्वेश्चन करना है एट द बिगिनिंग ऑफ योर प्रिपरेशन. आप वही काफ़ी है आपको तैयारी के लिए गेट में. और आप क्वेश्चन कहाँ से लगाना है एप्टीट्यूड का, आपकी गेट का प्रीवियस ईयर जो है उसका कंप्लीट करना है. एंड नेक्स्ट ESC का GS जो है इंजीनियरिंग सर्विसेज का, उसका भी 4 साल से पेपर चेंज हुआ था.
मतलब हर साल आप एवरेज भी लिया तो 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड टिल नाउ। आप 10 दिन में उसका वो भी कंप्लीट हो जाए। दोनों आपको सॉल्व करना है, ईएससी और गेट, क्योंकि आप जब एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स प्रिपेयर कर रहे हैं, आप खाली गेट के लिए मत सोचना। ये दोनों चीज़ आपको ईएससी में भी काम आएगा। उनमें तो आपको काफ़ी अच्छा सा लीड देगा और डिफरेंस क्रिएट करेगा। ओके, सो कीप दैट इन माइंड एंड इसको इग्नोर मत करना टेक्निकल सब्जेक्ट की वजह से, क्योंकि इसका वेटेज जो है पिछले सालों से दोनों मिला के आपको 20 क्वेश्चन तो कंपलसरी आ रहा है। एंड आप अगर डिसेंटली पढ़ के गए तो आप उसमें 15 क्वेश्चन से आराम से सॉल्व कर सकता है। अगर आप एग्जाम में ठंडे बैठे हो, पूरा एकदम प्रीवियस ईयर करके गए, आप 15 क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व करता है। वहाँ पे ही आपका 30 नंबर तो मिल ही गया जीएस में। एंड जीएस में जनरली आपका 90-100 तो आसान स्कोर, वेरी गुड स्कोर होता है। सो आपको एक्स्ट्रा लाना है 60-17 एंड आपके क्वेश्चंस बचा कितना है, 80 क्वेश्चंस में आपको 80 मतलब 160 मार्क्स में आपको 60 और 70 स्कोर करना है। वो आप आराम से स्कोर कर सकते हो। आपको एक ही जगह है वहाँ पे डिफरेंस क्रिएट कर सकता है मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड, क्योंकि इनका जो सॉल्यूशंस होता है ऑप्शंस में वो डिटर्मिनेट होता है। अब बाकी जब जीएस के पेपर सॉल्व करते हो ईएस के लिए, उसमें ऑप्शंस आप एलिमिनेट करके सॉल्व करते हो। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू वोंट बी फाइंडिंग इन दी नोट्स इटसेल्फ एंड एनीवेयर। उसका सिलेबस काफ़ी वास्ट है एंड आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट किया जाता है, आप एलिमिनेट करके कैसे लगा सकते हो। सो मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड इसमें ऐसा नहीं होता, आप अगर आंसर आ गया तो पूरा नंबर मिल जाएंगे, अगर नहीं आए तो नंबर कट जाएंगे। इसमें एलिमिनेट करने कुछ नहीं होता है, होता है लेकिन आपको शूर शॉर्ट आंसर मिल जाएगी इसमें, तो इसका आप इम्पोर्टेंस देना। एंड नेक्स्ट अगर गेट के पर्सपेक्टिव में बात करो तो आप अगर रिवीजन शुरू कर दिया है, आप कुछ और कर रहे हैं तो आप इस ऑर्डर में जाइए प्लीज़। पहले सॉइल, एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्ट और मैथमेटिक्स ख़त्म कीजिए, क्योंकि ये जो पहले 5 टॉपिक जो है, खाली 5 टॉपिक पूरा है अपना 14 टॉपिक इस ऑर्डर में गया तो, क्योंकि यहाँ पे मैं आरसीसी और सॉम को भी मिला लिया था, स्टील स्ट्रक्चर को भी मिला लिया था एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और बिल्डिंग मटेरियल्स को भी मिला के कह रहा था। सो यहाँ पे हाँ लगभग 12-13 सब्जेक्ट हो गया। आप खाली 5 जो पढ़ने से शुरुआत वाले, यहाँ पे आपका 60-65 मार्क्स कवर हो जाएंगे गेट का। आपको गेट में पूरा पूछता है, 100 नंबर का सवाल आता है एंड आप पहले 5 से ख़त्म कर दिया तो कितना आपको मैक्सिमम 20 दिन लगता है। अगर आप आराम से भी किया तो 20 दिन में आप 60-65 मार्क्स कवर कर देंगे। एंड बाकी जो है सिलेबस तो हाँ काफ़ी है, फ्लूइड, आरसीसी इन सबका, लेकिन उसमें से पूछता है केवल 40-35 मार्क्स का है। ओके, सो आप प्रायोरिटाइज कीजिए सब्जेक्ट वाइज वेटेज एंड उसके हिसाब से आप रिवीजन शुरू कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ईएससी का सब्जेक्ट वाइज वेटेज। आप 1 मिनट इसको ध्यान दीजिए। या सो अब इसके बारे में बात करते हैं। ये जो वेटेज है ये इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रिलिमिनरी पेपर 2, मतलब अपना टेक्निकल पेपर जो होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम में, उसका वेटेज है। उसमें आपको 150 क्वेश्चंस पूछा जाएंगे, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। इफ इट हैपन टू बी नेगेटिव देन इट विल बी -2/3 मार्क्स। ओके, इस पे आप एनालाइज कर सकते हो। तो मतलब हर सब्जेक्ट किसी का भी छोड़ना नहीं है, हर सब्जेक्ट से बराबर थोड़ा बहुत पूछ लेता है, डिसेंट वेटेज रहता है। लेकिन आप थोड़ा ध्यान दिया तो आप ये देख सकते हो कि सॉइल, एनवायरनमेंट, फ्लूइड एंड बिल्डिंग मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से आपकी जो पेपर है वो 60% का पेपर बन जाएगा। एंड बाकी जो ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल, उससे आप यूनिफॉर्मली बनेंगे क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन पूछता है। एंड आपको यहाँ पे स्कोरिंग सब्जेक्ट जो होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम में, वो होता है जनरली सॉइल मैकेनिक्स, एनवायरनमेंट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स
कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, एंड नेक्स्ट आपका आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन आप जब ज्योमेट्रिक डिज़ाइन पूछता है हर साल उससे आपको 3 सवाल तो दिखना ही दिखना है। आपको बिना कैलकुलेटर से अगर आप सीधा करना चाह रहे हो तो नहीं कर सकते, लेकिन उसका एम्पेरिकल फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है जनरली वी टी प्लस वी स्क्वायर बाई 2GF जो लिखते हैं, उसको आप पहले वी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। आप सीधा जो kmph में देता है वो आप सीधा डाल सकते हैं उसमें। तो आपको करना क्या होता है, एसएसडी में आपका जो लैग डिस्टेंस, हाँ, रिएक्शन डिस्टेंस होता है, लैग डिस्टेंस या जो भी है, दैट विल बी वी इंटू टी, एंड टी करस्पॉन्ड्स टू 2.5 सेकेंड्स। एंड वी को अगर आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका वो टर्म हो जाएगा 0.28 इंटू 2.5, दैट विल बी 0.7 वी, प्लस आप वी स्क्वायर बाई 2GF जो होता है, आप जी को भी सब्सटीट्यूट कर दो, 2 को 2 लिख लो, एंड वी स्क्वायर जो है उसको 5/18 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, एंड उसको आप लिख सकते हैं पॉइंट सम 0034 वी स्क्वायर बाई एफ खाली। बस उतना ही करना है आपको, एम्पेरिकल फॉर्म में आप याद करना है, ताकि आप उधर कन्वर्शन में टाइम ना वेस्ट हो जाए, एंड आपका आंसर भी एक्यूरेटली आ जाएगा आसपास का। आप ऐसा करने के लिए आप इस डायरेक्शन में करने के लिए रखिए, एंड आपको और थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यूज भी याद करना पड़ता है। जैसा हो गया कि √2g जो होता है उसका वैल्यू आता है आपका 4.47, एंड 1/π का आपका हो गया 0.105, एंड अगर आपको पाई स्क्वायर दिखा तो उसको आप लिखना है 10। ऐसे अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज जो होता है, इस पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि इसी से आपका न्यूमेरिकल जो होता है ईएससी में वो कम टाइम में अच्छे एक्यूरेसी से सॉल्व होता जाता है। ओके, एंड आप ब्लाइंडली प्रीवियस ईयर मत सॉल्व करना, उसको आप देखिए किस तरीके से आप अप्रॉक्सीमेट कर सकता है उसको, क्योंकि काफ़ी लोग जब थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल देखता है वो छोड़ देता है, क्योंकि ये वो लोग सोचने लगता है कि एग्जाम में आ गया तो नहीं कर पाएंगे, तो उसको नेग्लेक्ट करके छोड़ देता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आप अप्रॉक्सीमेशन बना लीजिए थोड़ा बहुत, नियरेस्ट वैल्यू आपकी ये सब करने से आपकी आ जाएगा, ट्राई मत लीजिए। एंड आरसीसी में जो है उसमें भी होता है स्टैंडर्ड वैल्यूज, ताकि आपका 0.87 हो गया 361.05 मेगा पास्कल, वो है HYSG स्टील ऑफ ग्रेड 415। ये सब वैल्यूज आपका अच्छे से याद करना पड़ता है। एंड इसमें एक और स्कोरिंग सब्जेक्ट आता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। इसका आप 1-2 स्टेप वाला क्वेश्चन ही देता है, आप आराम से इसका न्यूमेरिकल निकाल सकते हो। सो दैट विल बी आल्सो स्कोरिंग सब्जेक्ट। यहाँ पे आप थोड़ा बात किया तो सॉइल मैकेनिक्स आपका स्कोरिंग है, एनवायरनमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन आप अगर एम्पेरिकली पढ़ के जाए तो ये भी आपका अच्छा स्कोरिंग बनेगा, एंड फ्लूइड मैकेनिक्स है, इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। स्कोरिंग इसको नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोलिक मशीन है इसमें आपको स्पेसिफिक स्पीड, उसमें पावर 5/4 एंड 3/4 वो सब आ जाता है, उसको भी आप कर सकते हो अप्रॉक्सीमेशन। जब पावर 5/4 होता है उसको आप लिखना पड़ता है h इंटू एच पावर 1/4। h पावर 1/4 को उसको आप 2 बार स्क्वायर रूट कर लो, तो ऐसा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल के कर सकते हैं। मतलब आपका लंबा जाएगा थोड़ा प्रॉब्लम फ्लूइड में, ये थोड़ा रिस्की है, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। सर्वेइंग जो है इसमें भी पहले जो 4-5 टॉपिक है उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि आपका हो गया ट्रैवर्सिंग, कंपास सर्वे, ये सब। कंपास सर्वे का गेट में और इसमें भी पूछता है, आपका फॉरवर्ड बेरिंग निकाल दो, बैकवर्ड बेरिंग निकाल दो, वो सब। तो दैट विल बी ए पहले 4-5 चैप्टर, वो भी आपका अच्छा खासा स्कोरिंग है, उतना आपको न्यूमेरिकल करने की ज़रूरत नहीं होती। एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स तो दिस इज लाइक द मोस्ट बेसिक सब्जेक्ट विच इज स्कोरिंग पर गेट एंड ईएससी एज वेल। लेकिन जो गेट में है इसमें इससे कम सवाल आता है। ईएससी में इसके काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंस होता है, खाली प्री के लिए भी नहीं, मेंस के लिए भी इससे काफ़ी अच्छा वेटेज होता है, एंड ये सिंपली कॉन्सेप्चुअल होता है। कुछ लोग को दिक्कत होती, मैं मानता हूँ कुछ कॉन्सेप्ट मुझे भी पहली बार समझने में दिक्कत आया था, लेकिन आप इसको ट्राई करो, गेट का सवाल लगा दो। गेट का सवाल लगाने से आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होता है वो क्लियर हो जाते हैं। आपके गेट का लिटरली जो पेपर होता है दैट विल बी दी बेसिक फाउंडेशन फॉर ईएससी मेंस।
कुछ सब्जेक्ट्स का अगर आप गेट का अच्छे से सॉल्व किया तो आपका ईएससी मेंस का बेसिक्स जो है वो सारे कवर हो जाएंगे एंड आप डायरेक्टली थोड़ा बड़ा बड़ा प्रॉब्लम धीरे धीरे लगा सकते हैं. ओके, सॉम विल आल्सो भी स्कोरिंग एंड हाइड्रोलॉजी इरिगेशन भी थोड़ा बहुत तक स्कोरिंग है. इरिगेशन में कभी कभी कुछ भी पूछ लेता है. इसका लेसिस इक्वेशंस जो होता है इरिगेशन का कभी कभी उसके उससे पूछ लिया जाता है. अगर एफ आपका 1 दे दिया तो वो सब क्वेश्चंस कर सकते हैं. लेकिन इसको एवरेज मानते हैं, मतलब इतना स्कोरिंग नहीं मानते. एंड स्टील जो है इसी में भी आपका मैक्सिमम सवाल जो बनता है वो सब आपका पहले 5 चैप्टर से ही बनता है. मतलब प्रॉपर्टी से कॉलम्स आपका क्या हो गया, कनेक्शंस हो गया, वेल्डेड बोल्टेड एसेंट्रिक एंड नेक्स्ट टेंशन मेंबर्स. नेक्स्ट उसके बाद आता है कंप्रेशन. अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखा तो न्यूमेरिकल भी एक ही टाइप का पूछता रहता है. M20 बोल्ट देता है, नंबर ऑफ बोल्ट्स निकालने के लिए बोलता है. उसका एक कांस्टेंट वैल्यू होता है shear स्ट्रेंथ फॉर M20 बोल्ट, दैट विल बी अराउंड 27 किलो न्यूटन और समथिंग. वो सब आपको थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने से खाली आंसर पे नहीं ध्यान रखना है, थोड़ा उसको भी एनालाइज करना है क्या क्या वैल्यूज निकाल रहे हैं. एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ईएससी में जो ऑप्शंस होता है, ईएससी का प्रॉब्लम जो होता है दिस वर मोस्टली बेस्ड ऑन द रियल टाइम एप्लीकेशंस. इसमें आपकी मेमोरी भी टेस्ट किया जाएंगे एंड थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाएगा. एंड गेट जो है दैट विल बी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशंस. उसका जो आंसर होता है कुछ भी हो सकता है, रियल टाइम नहीं देता है. एंड ईएससी का जो है आपका रियल टाइम में कितना बोल्ट्स लगेंगे एंड वाटर जब प्यूरिफिकेशन में एक सैंड फिल्टर कितना एक्यूरेटली वाटर प्यूरिफाई करता है, वो सब आपकी रियल रियल टाइम में भी उतना ही वैल्यूज निकलेंगे. सो इसमें भी इतना ही है. अगर आप वो सब आइडिया है तो आप जब रिवाइज करते हो आपको पता लगता है कि अच्छा इसका इतना रेंज होता है डिटेंशन टाइम, इसका फ्लो रेट इतना होता है, सेटलिंग वेलोसिटी इसके बीच में होता है सेडिमेंटेशन टैंक का. अगर आप वैल्यूज आप आइडिया है तो ऑप्शन में अगर उसके रेंज में जो आंसर आए मोस्टली वही होता है. आप बिना क्वेश्चन सॉल्व करे ही आंसर लगा सकते हैं. आपकी टाइम भी काफ़ी सेव हो जाएगा. एंड नेक्स्ट जो है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल. कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट आसान सा चैप्टर है. इसमें सिलेबस कम होता है लेकिन वेटेज भी अच्छा खासा है. आपको बस सीपीएम पार्ट ही पढ़ना है, मैक्सिमम उसी से क्वेश्चन बनेंगे. एंड उसमें भी क्या है, आपको नेटवर्क डायग्राम बनाना सीखना है. एंड बाकी थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी बेसिक. यू कैन score maximum number of marks by studying a minimum compare weightage wise in construction management. एंड जो बिल्डिंग मटेरियल्स है इसका सिलेबस ज़्यादा होता है लेकिन जो सवाल होता है मैक्सिमम इसका जो सवाल होता है 70% डायरेक्टली पूछ लेता है. आप नोट्स इसको 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा. दैट विल मेक यू दैट विल मेक योर एग्जाम बेटर स्कोरिंग. बाकी सब्जेक्ट्स का रिवीजन जो है वो 2-3 बार में हो जाता है, लेकिन बिल्डिंग मटेरियल जो है अब जब पहली बार दे रहा है या दोबारा भी दे रहा है आपको 4 बार तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है बिल्डिंग मटेरियल्स. इसमें जो मैक्सिमम सवाल होता है डायरेक्टली होता है, आप देख के ही टिक लगा सकते हो. एंड कुछ क्वेश्चंस होता है कभी कभी थोड़ा घूम के पूछ लेते हैं. एंड नेक्स्ट सम ऑफ देम विल बी आउट ऑफ द सिलेबस एंड ऑल. उसके लिए आप कुछ कोई नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर पाएगा. आपको मोस्टली एग्जाम में आपको करना है जो क्वेश्चन आपको आता है उसको सही से लगाना है. वही से आपका रैंक आगे बढ़ता जाएगा. ओके, आपको ये गलतियां नहीं करना है कि जब आपको कुछ क्वेश्चन आता है उसको थोड़ा ओवर थिंकिंग की वजह से, सिली मिस्टेक की वजह से उनको गलतियां नहीं करना है. ओके. एंड एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है. ओके, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है. गेट में इतना नहीं होता लेकिन ईएससी में इसकी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है. इसकी अटेम्प्ट की जो तरीका है उससे आपका 20 नंबर का फ़र्क दिखेगा. आप जब भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो या मॉक कुछ भी दे रहे हो आपको ये दिखेगा ही दिखेगा, अब 20 नंबर का फ़र्क. ओके, बात करते हैं उसके पहले. गेट है मतलब सेम ही तरीका है इन दोनों का. गेट का ऐसा करना है कि गेट में आपका एक दिक्कत होता है कि आप एक ही अटेम्प्ट में एक ही क्वेश्चन देख पाते हो. एंड ईएससी में ऐसा होता है कि आपको पेपर दिया जाएगा, उसमें एक ही साइड में 3-4 क्वेश्चन आप आराम से पलट के देख सकते हो. एंड गेट में ऐसा नहीं कर सकते आप क्योंकि
एक स्क्रीन पे एक ही क्वेश्चन दिखता है एंड आपको क्लिक करना पड़ता है। उसका वेटिंग टाइम भी 1-2 सेकंड होता है एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन स्किप कर जाने तक। एंड आप एक ये बात ध्यान रखना है कि आपका एक कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो क्वेश्चन आपको किया हुआ है या आप कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, आप उसके पास अटक मत जाना, वो काफ़ी भारी पड़ सकता है एंड में। ये मैंने एक्सपीरियंस किया था। लोग ईगो पे ले लेते हैं उस क्वेश्चन को, ये मैंने करके आया था लेकिन या इसकी इस टाइप का मॉडल मैंने किया था पहले, अब क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, तो वहीं से रुक जाके उसी को करने लगता है। आपको बस थोड़ा सा आप सोच लीजिए, आपको गेट के बारे में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 65 एंड वो ऐसा देता है कि पेपर 65 में 25 to 30 क्वेश्चन जो होता है वो आसान होता है एंड बाकी जो 35 क्वेश्चन जो है 35 to 40 कुछ भी क्वेश्चन उसमें 20 क्वेश्चन, 20 नहीं 25 क्वेश्चन मीडियम होते हैं एंड जो बाकी 15-10 क्वेश्चन होता है वो थोड़ा टफ देते हैं। तो आप कुछ कोई भी 15-10 में उठा के आप फंस गए हो, आप ये सब छोड़ रहे हैं। मतलब आप 35 to 40, 35 अराउंड 35 क्वेश्चन, अराउंड 35 सिंपल क्वेश्चन यू आर लीविंग देम बिहाइंड फॉर वन लेंथी क्वेश्चन। आप वो बात थोड़ा माइंड पे रख लीजिएगा, जब भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं ये बात रख लीजिए। अगर आप क्वेश्चन लेंदी पढ़ रहे हैं एंड आपको किया हुआ है लेकिन नहीं कर पा रहे, आप उसको छोड़ दीजिए, उसको टिक कर लीजिए। गेट एग्जाम में ऐसा होता है ना, अगर आप क्वेश्चन छोड़ के गए तो उसका लाल मार्क दिख जाता है एंड इफ़ यू आप लेटर ऑप्शन कुछ होता है उसमें वायलेट दिखता है एंड आप ऑप्शन लगा के कम बैक लेटर लगाए तो उसमें वायलेट मार्क एंड नीचे एक ग्रीन कलर सा डॉट दिखता है पेपर शेप में। तो ऐसा कर सकते हैं आप, जो क्वेश्चन आप कर सकते हैं लेकिन उस टाइम नहीं कर पा रहे तो आप क्या कीजिए, उसको वायलेट या कुछ भी लगा के स्किप कीजिए। आप ये मत सोचना कि अगर ये नहीं कर पा रहा हूँ तो कोई और कर लेगा उसका रैंक आगे जाएगा, वो मत सोचना। आपको जो 65 क्वेश्चंस दिया हुआ है वो सब आप देखना चाहिए, क्योंकि किसको पता था अगर मान लो आपकी सेट में आखिरी जो 10-15 क्वेश्चन है काफ़ी आसान आ गया लेकिन आप मिडिल में कुछ लेंदी क्वेश्चंस मिल गया उसी में फंस गए और एंड आपके टाइम ख़त्म हो गया एंड उसकी वजह से आप एंड तक नहीं देख पाए पेपर को, तो वो आपको काफ़ी भारी पड़ सकता है। आप वो मत कीजिए, आपको हर एक क्वेश्चन पढ़ना है। उसको एक साइकिल की तरह सॉल्व कीजिए। पहला साइकिल ऐसा कीजिए कि आप क्वेश्चन देखता जाइए, आप क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपको आसान लग रहा है उसको सॉल्व कीजिए एंड आगे बढ़ता जाइए, जो क्वेश्चन आपको लेंदी लग रहा है उसको छोड़ दीजिए एंड आपको लग रहा है कि वो मैं पहले किया हूँ कर सकता हूँ, आप उसको वायलेट मार्क लगा लीजिए एंड आगे बढ़ते जाइए। मीडियम क्वेश्चन से अगर वो आ गया तो सही है, आगे बढ़ता जाइए। आप ये सब करने से एक और चीज़ होता है, आपके कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है एंड अब जब आप सेकंड एक फेज में 65 क्वेश्चन तक देख लेते हो और उसमें बीच बीच में कुछ गैप्स रह जाता है, आप बाद में अटेम्प्ट करने के लिए छोड़ दिया है एंड कुछ क्वेश्चंस डाउट है, आप वापस उसी साइकिल में आते हो, तब आपको जो क्वेश्चंस पहले डाउट है वो सब बन जाएंगे आराम से, क्योंकि आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो मेंटेन रहता है एंड आपका दिमाग भी अच्छा चलने लगता है, क्योंकि आप यू हैव सॉल्व्ड अराउंड 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 35 to 40 इन योर फर्स्ट एट ए गो। एंड अब ये भी होता है कि अगर अगर आप जो क्वेश्चन आता है उन्हीं को सॉल्व कर रहे हैं तो दैट विल आल्सो टेक लेस टाइम कंपेयर टू स्टकिंग एट द सेम क्वेश्चन। ओके, आपको ये टाइम प्रेशर भी कम होता है। जब आप वापस आओगे तब आप आराम से बैठ के करते हो एंड आपकी जो पहला जो हुआ क्वेश्चन से जो नहीं हुआ कुछ क्वेश्चन अब बन जाएंगे आपके थ्रू, ये सब होता है। एंड आप ईएससी का प्रीलिम्स का जो पेपर होता है इसका मेन खेल होता है टाइम मैनेजमेंट का। पहला आपको सिलेबस करना है, सिलेबस बहुत वास्ट होता है एंड क्वेश्चंस भी जो देते हैं 150 क्वेश्चंस आपको 3 घंटे में सॉल्व करना है। 180 मिनट्स 150 क्वेश्चन, सो आप कितना ही मिल रहा है 1.2 मिनट, उसका मतलब वो 1 मिनट 12 सेकंड में आपको एक एक क्वेश्चन करना है अगर एवरेज गए तो आप इसको ऐसा कीजिए कि आप जो हमने गेट पे डिस्कस किया था जो साइकिल वाइज करना है, पहले जो आसान क्वेश्चन है उसको करते जाना है। ईएससी में ऐसा कीजिए कि आप पहले
थ्योरी क्वेश्चन है, खाली उनको ही देखना, न्यूमेरिकल को मत ही देखो। पहले आपको जो थ्योरी क्वेश्चंस होता है, आप बस खाली थ्योरी क्वेश्चंस के पास जाओ एंड उसको पढ़ो एंड उसको अटेम्प्ट कर दो अगर आ गया तो। इसमें क्या होता है, थ्योरी आपको सॉल्व करने में 1 मिनट या 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते हैं। एंड आप एक और बात भी एक और पॉइंट भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखा है एंड आप टेस्ट सीरीज भी देखा है, उसमें आप एक बात ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपके 150 क्वेश्चंस में 80 to 90 क्वेश्चंस थ्योरी से ही आते हैं। ओके, सो लेकिन ये लोग जो होता है वो कंटिन्यूसली नहीं देते, बीच बीच में लंबी सवाल पूछ लेता है, ताकि वो लोग चाहता है कि लोग डिफरेंस क्रिएट हो, थोड़ा ज़्यादा लोग पीछे पड़ जाए इस क्वेश्चन में अटक जाके। तो आपको वो ओवरकम करना है, आपको बस खाली थ्योरी अटेम्प्ट करना है। अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ के गए तो अच्छा है, अगर 90 क्वेश्चंस में आप 80 सॉल्व कर सकते हो एंड बाकी आपका बचा है 60 क्वेश्चंस, एंड ये जो 90 क्वेश्चंस है आप 1.5 आवर में कंप्लीट कर सकते हो, एंड बाकी आपके पास बचा है 1.5 आवर, उसमें आपका बचा है 50 या 60 क्वेश्चन न्यूमेरिकल बचेंगे। आप आराम से 2-3 मिनट दे सकते हो एक एक न्यूमेरिकल को, एंड आपका दिमाग भी ठंडा रहेगा, प्रेशर भी कम होगा, अटेंड भी आपका काफ़ी अच्छा जाएगा। ओके, आप ये बात ध्यान रखना पेपर अटेम्प्ट करने के टाइम। ओके, सो ये हो गया अब तक ईएसए और गेट का कैसे सब्जेक्ट वाइज कितना होता है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, एंड अब आगे बढ़ते हैं सब्जेक्ट वाइज। अब डिस्कस करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। ओके, फ्लूइड मैकेनिक्स जो है गेट में इसका वेटेज कम होता है, लेकिन एक पॉइंट है इसमें, एक टॉपिक होता है ओपन चैनल फ्लो एंड पाइप, ओपन चैनल फ्लो, पाइप फ्लो, एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एंड फ्लूइड स्टैटिक्स। इसी से आपका मैक्सिमम बनेगा। ओपन चैनल फ्लो से आपको हर साल एक सवाल कंपलसरी आता है इन मॉर्निंग पेपर एंड आफ्टरनून पेपर एज वेल एज, दोनों सेट में आपको एक एक क्वेश्चन तो पक्का ही डालते हो ओपन चैनल फ्लो के थ्रू। ओके, एंड इसका आप ईएससी में देख रहे हो तो इस 2018 में आए, इससे 32 क्वेश्चन आए हैं प्रीलिम्स में। आपका पूरा पेपर होता है 150 क्वेश्चन एंड वहाँ से दिया हुआ है 32 क्वेश्चन, तो कितना हो गया वहाँ से, अराउंड 20% ऑफ द पेपर केम फ्रॉम वन सब्जेक्ट अलोन। आपका सब्जेक्ट कितना होता है सिविल में, 13 सब्जेक्ट्स है। अगर आप एवरेज भी किया है उसको हर सब्जेक्ट यूनिफॉर्मली, आप 8% कुछ बनेगा एक एक सब्जेक्ट का, लेकिन यहाँ पे आया है आपका खाली एक सब्जेक्ट से 20%। वो थोड़ा स्पाइक देखा था उसमें, थोड़ा ज़्यादा दे दिया था, लेकिन ये तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्लूइड मैकेनिक्स से आईएएस प्रीलिम्स में 20 क्वेश्चन तो आना ही आना है हर साल। तो आप खाली जो खाली गेट के लिए पढ़ रहा है वो पहले फोकस कीजिए ओपन चैनल फ्लो कंप्लीट करने में, एंड नेक्स्ट फ्लूइड का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होता है प्रॉपर्टीज हो गया एंड फ्लूइड स्टैटिस्टिक जैसा प्रेशर मेजरमेंट वो सब, एंड नेक्स्ट हो गया पाइप फ्लो एंड लैमिनार फ्लो। इन पांचों चीज़ों से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे। सो पहले आप इन पांचों प्रीवियस ईयर ख़त्म कीजिए, एंड जो ईएससी प्री भी सही से देना चाह रहे हो तो आपको हाइड्रोलिक मशीन्स अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि इससे आपको हर साल 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे। आप न्यूमेरिकल पहले मुश्किल लगता है, लेकिन आप जब टेक्निक से सॉल्व करते हो अप्रॉक्सीमेशन कर करके आपको आंसर मिल जाएगा, एग्जैक्ट नहीं मिलेगा लेकिन यू विल गेट द नियरेस्ट आंसर पॉसिबल एवरी टाइम। तो आप वो इंट्यूशन डेवलप करना पड़ता है आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स सॉल्व करने के टाइम। एंड इसका खाली ईएससी के प्री में भी नहीं है, एंड नेक्स्ट ईएससी मेन जो है पेपर 2 में 2 सेट्स होता है। सेट 1 में आपको आएंगे, हमने ईएससी मेंस का भी अच्छा थोड़ा ब्रीफली बात कर लेते हैं। ईएससी मेंस का होता है 2 पेपर, एक सुबह एक दोपहर को होता है। सुबह वाले पेपर में आपको स्ट्रक्चरल के सब्जेक्ट्स आएंगे, ताकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स हो गया, स्टील स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, रेनफोर्स्ड कंक्रीट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स। ओके, ये छः हो गया। एंड कन्वेंशनल टाइप जो होता है इस बार थोड़ा गड़बड़ आ गया था पेपर, वैसा हर साल आता है। 2 सेक्शंस होता है आपको हर पेपर में, एक एक सेक्शन में 4-4 क्वेश्चन होंगे। उसमें सेक्शन में जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है, एंड बाकी जो
6 क्वेश्चंस बचा हुआ है, उसमें आपको कोई भी 3 अटेम्प्ट करना है। एंड वो अटेम्प्ट भी ऐसा करना है कि हर सेक्शन में एक क्वेश्चन तो मिनिमम है। मतलब आप पहले मान लो कि फर्स्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया एंड बाकी बचा है 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आप खाली एक सेक्शन से बाकी 3 नहीं कर सकते हो, आप एक क्वेश्चन तो मिनिमम करना है दोनों सेक्शन से। ओके, आपका पहला सेक्शन में जनरली देते हैं पेपर 1 एंड सेक्शन 1। आपको दिखेंगे सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस। एंड सेक्शन 2 जो होता है उसमें आपको आएंगे स्टील स्ट्रक्चर्स, रेनफोर्स्ड कंक्रीट, एंड नेक्स्ट आपको आएगा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। ओके, आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आप एक बार खाली प्रीवियस ईयर नहीं, ऐसा भी देख लीजिए ईयर वाइज पेपर्स का। मतलब ऐसा है कि 2019 पेपर, 2018 पेपर, ऐसा खाली देख लीजिए जो पूरा क्यूमुलेटिव देता है। आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए आप मतलब थोड़ा समझ लीजिए मतलब सेक्शन ये फिक्स्ड पूछ रहा है या मिक्स कर रहा है, ऐसा कुछ। एंड वन मोर थिंग, आप हर साल उसके वेटेज कैसा वैरी कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, कभी कम कर रहा है कभी ज़्यादा कर रहा है, वो सब भी आप पहले ऑब्जर्व कीजिए। उसके हिसाब से आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि किस सब्जेक्ट को मैं इम्पोर्टेंस देना है, किस सब्जेक्ट को नहीं देना है। एंड आपकी तैयारी जो है प्रीलिम्स का और मेंस का वेटेज थोड़ा सा हल्का डिफरेंस होता है, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन ऐसा सब्जेक्ट्स है वो उसमें कम नंबर पूछेंगे। आरसीसी, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टील प्रीलिम्स में थोड़ा कम पूछेंगे, लेकिन मेंस में जो है इसका काफ़ी ज़्यादा सवाल बनता है एंड नंबर भी काफ़ी मैटर करता है। आपका डिज़ाइन क्वेश्चन जो होता है अगर आप सही कर दिया तो थोड़ा भी गलत कर दिया तो आपको पार्शियल नंबर तो मिल जाएगा। आप अच्छे से सही किया तो 2-3 नंबर काटेंगे अगर आप अच्छा खासा किया तो। सो आपकी मार्क्स स्कोर करने की थोड़ा यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी होता है स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट, डिज़ाइन वाला सब्जेक्ट्स का। एंड ये जो स्ट्रॉन्ग और स्ट्रक्चरल होता है उसमें अगर आपका आंसर आ गया तो पूरा नंबर मिलेंगे, अगर आंसर नहीं आया, प्रोसेस भी गलत है, लास्ट स्टेप गलत है, तो आपको मैक्सिमम बहुत नंबर कट जाते हैं। अगर 20 नंबर के क्वेश्चन मान लो आप आपने लास्ट स्टेप तक सही किया, लास्ट स्टेप में गलत किया, सो आपको उधर 8 या 7 दे सकते हैं कभी कभी, और कुछ लोग तो 5-6 देते हैं। तो ऐसा रिस्की फैक्टर होता है, वो सब आप थोड़ा मेजर कीजिए, उसके हिसाब से आप डिसाइड कीजिए। एंड आप स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट जो है उसके डिज़ाइन में आपको पहली बार करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो आपको वो प्रैक्टिस से ही बनता जाता है। एंड बहुत लोग ऐसा करते हैं कि रोज़ एक क्वेश्चन स्ट्रक्चर का करते हैं, एक क्वेश्चन आरसीसी का, एक क्वेश्चन स्टील का करते हैं। रोज़ 3-3 क्वेश्चन इनका शुरू करते हैं, उसके बाद ही वो लोग अपना जो भी तरीका का प्रिपरेशन है वो चालू करते हैं। जैसे हमने देखा था कि जनरल एप्टीट्यूड जब पढ़ते हो पहले उसका पढ़ते हैं, एंड हमने डिस्कस किया था पहले जनरल एप्टीट्यूड का 3-4 क्वेश्चन कर लो, उसके बाद बाकी का शुरू कर देना। ऐसा ही है इसका भी, बहुत लोग करते हैं पहले स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन करते हैं। स्ट्रक्चर का ये जो होता है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन और स्लोप डिफ्लेक्शन, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है अगर आप पहली बार कर रहे हो तो, एंड मिस्टेक्स होने की काफ़ी प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन क्वेश्चन जो होता है वो रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होता है, मतलब सारे जैसा मतलब सारे सवाल का एक ही स्टेप फॉलो करना होता है प्रोसीजर का, लेकिन वहाँ पे लोग जो है ना गलतियाँ कर देते हैं शुरुआत करने में। तो आप पहले आराम से करना सीखना पड़ेगा, एंड उसके बाद आप धीरे धीरे बढ़ता जाएंगे। ओके, थोड़ा मेंस का बता दिया। एंड मेंस का पेपर 2 में जाते हैं। पेपर 2 में भी 2 सेक्शन होता है पेपर 1 जैसा। एंड पेपर 2 की सेक्शन 1 में आपको मिलता है एनवायरनमेंट, फ्लूइड एंड हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन। जो वाटर रिसोर्सेस है इन सारा सब्जेक्ट्स का पहला सेक्शन हो गया। एंड दूसरा सेक्शन जो बचा हुआ है उसमें आता है आपका सॉइल मैकेनिक्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्वेइंग। ये जो हो गया, जनरली ये रूल नहीं है इस सेक्शन में ये इन्हीं सब्जेक्ट्स पूछा जाए, बहुत रेयरली वो मिस करता है। जैसा कि इस साल ईएससी मेंस का पेपर 1 में ऐसा किया था, उसने मिक्स कर दिया था। हर एक सेक्शन में सब दिख गया था, स्ट्रक्चर वाला सॉन दिखे थे एंड स्टील, आरसीसी, स्ट्रक्चरल। तो इस बार थोड़ा टफ आ गया था पेपर 1 उसकी वजह से। तो आप मतलब
कंप्लीटली ब्लाइंडली एक्सपेक्ट भी मत करो, आप थोड़ा पैटर्न भी समझ लीजिए, उसके हिसाब से आप थोड़ा अंदाज़ा लग जाएंगे एंड आप आराम से अटेंड भी कर सकते हो। ठीक है, आप फ्लूइड मैकेनिक्स में जाएंगे। उसमें हम शुरू करते हैं पहले फ्लूइड मैकेनिक्स, इसके बाद हम ओसीएफ और डायमेंशनल एनालिसिस, नॉचेस एंड वियर्स एंड नेक्स्ट हाइड्रोलिक मशीन्स देखते हैं। पहले हम फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में बात कर रहे थे, इसमें पहला चैप्टर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का। तो फ्लूइड को कहते हैं हम टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन एट ए पर्टिकुलर शियर स्ट्रेस, इसी को फ्लूइड कहते हैं। लिक्विड और गैसेस दोनों को फ्लूइड कहते हैं एंड एग्जिस्ट फॉर ए मैटर टू बी कंसिडर्ड एज फ्लूइड। नुडसन नंबर कुछ होता है, वो कंटिन्यूम डिफाइन करता है, उसकी वैल्यू लेस देन 0.01 होना चाहिए, यहाँ पे लिखा है। एंड नेक्स्ट जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। एंड अगर आप लिक्विड ले रहे तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दिया तो विस्कोसिटी कम हो जाएगा। एंड इफ़ यू आर सीइंग, इफ यू आर मेजरिंग दैट फॉर ए गैस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, उसका इंटरमॉलिकुलर कोलिजन होता है वो ज़्यादा होता है, वो इंक्रीज हो जाएंगे, मोमेंटम इंक्रीज हो जाए, मॉलिकुलर मोमेंटम इंक्रीजेस, तो योर विस्कोसिटी विल आल्सो इंक्रीज, विस्कोसिटी आल्सो इंक्रीजेस बट डेंसिटी डिक्रीजेस। ओके, एंड शियर स्ट्रेस होता है मोस्टली इसका न्यूटन लॉ से ही हम डिराइव करते, न्यूटन लॉस ऑफ लिक्विड से हम स्टडी करते हैं फ्लूइड में, जैसा वाटर मान लो। एंड उसका होता है शियर स्ट्रेस गिवन है न्यू इनटू डो वी बाय डो वाई। वी हो गया आपका वेलोसिटी एट द सरफेस विथ रेस्पेक्ट टू डी, डी वी बाई डो वाई हो गया आपका वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू द डेप्थ फ्रॉम द सरफेस। आपकी फ्लूइड सरफेस, एक फ्लोर पे जो कॉन्टैक्ट एरिया होता है उसमें आपका जो शियर स्ट्रेस होता है मैक्सिमम होता है, एंड फ्री सरफेस शियर स्ट्रेस इज ऑलमोस्ट जीरो, आइडियल केस में जीरो है ये। एंड नेक्स्ट जाते हैं रियोलॉजी ऑफ फ्लूइड्स। रियोलॉजी जो है डिफाइन करता है शियर स्ट्रेस विद रेस्पेक्ट टू दी शियर रेट। शियर रेट जो होता है दैट इज नथिंग बट दी वेलोसिटी ग्रेडियंट dv बाई dy। ओके, इसमें भी दो पावर लॉस होते हैं, एक पावर लॉ होता है इनिशियली फ्लूइड की जो सरफेस है एट ए कांस्टेंट शियर स्ट्रेस, आप जितना भी हल्का शियर दे दो तो मूवमेंट विल हैपन। एंड एक और होता है सेकंड पावर लॉ, आपको पहले थोड़ा सा, आप पहले रिजर्व होगी उसके टॉप सरफेस में थोड़ा सा शियर रेजिस्टेंस होगी, तो आपको अप टू टाउ नॉट देना पड़ेगा। अगर आप टाउ नॉट से ज़्यादा दिया तो तभी उसका सरफेस वेरिएशन शियर रेट देखेंगे, उसके अंदर सरफेस मूव नहीं होगा, मूव नहीं होगा। इसमें अपना 6 तरीके की आते हैं। पहले फर्स्ट पावर लॉ में जाके और इनिशियल शियर स्ट्रेस ज़ीरो रिक्वायर्ड होता है मूव करने के लिए, उसमें आपको आएंगे न्यूटन्स, जो स्ट्राइट लाइन है न्यूटोनियन फ्लूइड। एंड जो नीचे वाला जो है दैट विल बी योर डायलेशन, एंड ऊपर वाला जो है दैट विल बी सूडो प्लास्टिक। नेक्स्ट अब जाते हैं सेकेंड पावर लॉ, उसमें राइट लाइन जो है दैट विल बी नोन एज बिंगम प्लास्टिक। एंड नेक्स्ट आपका हो गया सेवन, ये जो हो गया नॉन लीनियर प्लास्टिक फ्लो हो गया, इसको थिक्सोट्रोपिक कहते हैं। एंड ये जो फ्लो हो गया नंबर 3 दैट विल बी रियोपेक्टिक। ओके, एक बार इसको थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इससे सवाल पूछा जाएंगे आईएएस में, प्रीलिम्स में इससे मैच द फॉलोइंग पूछा जाएगा, एंड नेक्स्ट गेट में भी पूछते हैं मैच द फॉलोइंग। इससे आपकी जो वाई ऑर्डिनेट होता है दैट विल बी शियर स्ट्रेस एंड एक्स ऑर्डिनेट विल बी शियर रेट। ओके।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका एक कॉन्सेप्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में, कैपिलैरिटी। दिस इज ड्यू टू द एडहेशन बिटवीन द फ्लूइड पार्टिकल्स एंड द सरफेस ऑफ द ट्यूब और समथिंग। इसकी वजह से क्या होता है, सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी होता है, इट इज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। इसकी वजह से क्या होता है, अगर स्मॉल डायमीटर फ्लूइड्स में there you can see the rise of fluid compared to the level surface. That is due to the adhesion between the fluid particle and the tube surface. Okay, and इसका आपका फॉर्मूला दिया जाएगा कैपिलैरिटी राइज का 4 सिग्मा cos phi by गामा इंटू डी। आपका सिग्मा हो जाएगा उसमें सरफेस टेंशन, एंड गामा इज द यूनिट वेट ऑफ द फ्लूइड, एंड डी इज द डायमीटर ऑफ द फ्लूइड। और आप इसमें ध्यान रखना है, जो गामा जो होता है जनरली लोग कंफ्यूज मतलब आदत हो जाते हैं जनरल की, गामा हमेशा वाटर की यूनिट वेट ले लेते हैं, दैट इज 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर। आप क्वेश्चन में ध्यान से देख लीजिए वो किस टाइप ऑफ फ्लूइड मेंशन किया है। ओके, उसके बाद आप लगा लीजिए। एंड नेक्स्ट we will go to pressure difference across the surfaces. इस कॉन्सेप्ट में होता है प्रेशर डिफरेंस इज गिवन है सिग्मा इंटू 1/r1 प्लस 1/r2। ओके, और जो फिल्म का सरफेस होता है दैट विल बी इंटैक्ट ड्यू टू द सरफेस टेंशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस एरिया। तो जो इनर और आउटर प्रेशर का वेरिएशन जो होता है दैट विल बी गिवन है सिग्मा इंटू 1/r1 प्लस 1/r2। अगर आप ट्यूब ले लिया तो उसमें R1 जो होता है दैट विल बी रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ द ट्यूब, एंड R2 जो होता है दैट विल बी इन्फिनिटी, क्योंकि दूसरा डायमेंशन है ट्यूब का, दैट विल बी इन्फिनिटी। एंड अगर आप स्पेरिकल लिया तो R1 R2 सेम हो जाएंगे, एंड अगर आप सोप बबल लिया तो एक ट्वाइस होगा डेल्टा पी, क्योंकि उसमें दो इंटरफेस देखेंगे, तो डेल्टा पी विल बी 2 सिग्मा इंटू 1/r1 प्लस 1/r2, एंड आपका जो उसमें R1 R2 है दोनों सेम रहेंगे। And bulk modulus, this is defined as increase in pressure per unit change in volume। मगर आप कुछ फ्लूइड ले रखा है, उसको आप एक यूनिट चेंज इन वॉल्यूम देखना चाह रहे हो, तो आपको कितना प्रेशर करना पड़ेगा। बल्क मॉडुलस के जो है दैट विल बी गिवन एज डेल्टा पी बाई माइनस वी। एक और कह सकते हैं इसका वन मोर फॉर्म इज डेल्टा पी बाई डेल्टा रो बाई रो, एंड इसका साइन जो होता है वॉल्यूम चेंज में उसका नेगेटिव आता है, क्योंकि प्रेशर इंक्रीजेस व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन वॉल्यूम। ओके, एंड वेपर प्रेशर जो होता है एक सैचुरेशन इक्विलिब्रियम होता है लिक्विड फेस और उसके ऊपर गैसेस जो है, एक इक्विलिब्रियम के बाद एक आता है कि द एटमॉस्फेरिक पार्टिकल जो है ऊपर जाता रहेगा लिक्विड के थ्रू, एंड एयर पार्टिकल्स विल गेट इनटू द लिक्विड सरफेस इनटू द लिक्विड, एंड वहाँ पे प्रेशर कम है तो आपका तो ऊपर प्रेशर कम है, सो उस टाइम क्या रह जाते द मोर मॉलिक्यूल्स विल गेट एवापोरेटेड अबव। वहाँ पे क्या होता है आपकी लिक्विड की क्वांटिटी जो है दैट विल बी डिक्रीज। जनरली जो लिक्विड्स होता है हाई वेपर प्रेशर, जैसे हो गया पेट्रोकेमिकल्स, उसको आप अच्छे से स्टोर करना पड़ता है। अगर आप उसको एनवायरमेंटली छोड़ दिया तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर जो होता है दैट विल बी मोर, मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है उससे थोड़ा ज़्यादा रहना पड़ता है उसका जनरली। अगर आप उसको खाली ओपन करके छोड़ दिया तो देन देयर विल बी एस्केप ऑफ द लिक्विड पार्टिकल्स इनटू द सराउंडिंग एयर सरफेस। ये आपका पहला हो गया फ्लूइड प्रॉपर्टीज का। नेक्स्ट वी विल गो इनटू द फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स। इसमें आपको आता है प्रेशर मेजरमेंट्स वो सब एंड ऑल। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म्स कुछ होता है, पास्कल आपको आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट विल बी द इंडियन एसआई यूनिट फॉर प्रेशर मेजरमेंट। 1 bar is defined as 10⁵ Pascal, and 1 atmosphere pressure is defined as 1.0135 bar.
okay. And Pascal's law जो है that is defined as the uh, when fluid is subjected to an increase in pressure, then every particle in the fluid will experience the same increase in pressure. एक कंडीशन तब वैलिड होगा जब shear stress of the fluid is zero. ये पॉइंट आप ध्यान रखना, ईएससी में इसी से स्ट्रेस करके सवाल पूछेंगे। ये सब जो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करने के लिए कंडीशंस जो होता है उन सब से क्वेश्चन बनते जाएंगे। तो पास्कल्स लॉ बेसिकली ये कहते हैं कि अगर आप फ्लूइड में कुछ प्रेशर इंक्रीज किया तो उसमें आप कोई भी पार्टिकल देख लीजिए, उस हर एक पार्टिकल में उतना ही प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज होगा। ओके, ये जब होगा फ्लूइड रेस्ट पे होगा। अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो शियर स्ट्रेस जीरो नहीं होगा, क्योंकि बॉटम लेयर जो है लिक्विड फ्लो किसी का वो स्टेशनरी रहता है एंड उसके ऊपर जो लिक्विड पार्टिकल से फ्लो करता रहता है, सो देयर विल बी शियर बिटवीन दी fluid and the fluid particle and the surface of the ground. ये ध्यान रखना है। एंड हाइड्रोस्टैटिक लॉ जो होता है, इट इज़ द प्रेशर वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एक्सिस। आप लिखते हैं ना जनरली वाटर के अंदर एट ए डेप्थ ऑफ h द प्रेशर इज टेकन एज गामा इनटू h। यही हाइड्रोस्टैटिक लॉ कहते हैं। आप जितना नीचे जाओगे उतना प्रेशर इंक्रीज होगा विद रेस्पेक्ट टू द हाइट। पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन देखिए, हमने पढ़ा था कि आप यहाँ पे P अमाउंट प्रेशर इंक्रीज किया, यहाँ पे भी P अमाउंट प्रेशर इंक्रीज होगा। तो ये सब हाइड्रोलिक लिफ्ट में यूज़ किया जाता है पास्कल्स लॉ के थ्रू। मान लो कि आप लेफ्ट साइड F फोर्स अप्लाई किया है, लेकिन उसका एरिया जो है दैट इज़ हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द राइट साइड। तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हुआ F/A/2, दैट विल बी 2F/A। तो वहाँ पे भी सेम प्रेशर इंक्रीज होगा व्हीकल के अंदर, लेकिन वहाँ पे फोर्स जो अप्लाई होगा ऊपर, वहाँ पे एरिया मान लो कि A है, देन इट विल बी इंटू P इंटू ए। P अपना है 2F/A इंटू ए। तो हम इधर F फोर्स अप्लाई किया तो उधर F फोर्स से ऊपर उठा है। ओके, आप 1 मिनट इसको ऑब्जर्व कीजिए एंड उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। या हो गए, देन विल मूव नेक्स्ट। प्रेशर मेजरमेंट जो होते हैं जनरली इट विल बी मेजर्ड इन 2 कैटेगरीज। एक होता है अपना गेज प्रेशर एंड एक होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। गेज प्रेशर मतलब होता है द अमाउंट ऑफ प्रेशर अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड अपना एब्सोल्यूट प्रेशर होता है दैट विल बी मेजर्ड फ्रॉम जीरो वैल्यू। हमने पहले पढ़ा था कि अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है दैट विल बी जनरली एट 1.0135 इंटू 10⁵ किलो पास्कल्स एंड ऑल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपकी एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है दैट विल बी प्रेशर अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपका प्रेशर जो 0.0135 बार से जितना ज़्यादा है उसका डिफरेंस जो आता है दैट विल बी योर गेज प्रेशर। एंड आप एब्सोल्यूट प्रेशर जो कैलकुलेट करते हो उसका जीरो से कितना ज़्यादा है दैट विल बी योर एब्सोल्यूट प्रेशर, और उसको वैक्यूम प्रेशर भी कह सकते हैं। एटमॉस्फेरिक जनरली प्रेशर जो होता है दैट विल बी मेजर्ड बाय पीजोमीटर। पीजोमीटर में जो लिक्विड यूज करता है जनरली दैट विल बी mercury, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है एंड डेंसिटी इज आल्सो हाई। एंड डिफरेंशियल मैनोमीटर जो होता है दैट विल बी यूज्ड टू मेजर द प्रेशर बिटवीन 2 डिफरेंट पॉइंट्स। आपने 2 गैस चैम्बर ले रखा है, उन दोनों में आप मेजर करना चाह रहे हो कि एट ए पर्टिकुलर वॉल्यूम
उनका प्रेशर डिफरेंस कितना है. सो देन वी विल यूज द डिफरेंशियल मैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट. ओके. एंड पिरानी गेज जो होता है दैट विल बी यूज्ड फॉर एक्सट्रीमली लो प्रेशर्स. एंड एक और आता है ट्रांसड्यूसर. दिस विल कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल. मतलब कुछ उस इंस्ट्रूमेंट में कुछ प्रेशर अप्लाई हो रहा है, सो दैट विल बी द मैकेनिकल फोर्स. वो आपको इलेक्ट्रिक फोर्स में कन्वर्ट होके आपको रीडिंग दिख जाएगा कितना है. दैट इज आल्सो आपका एक्यूरेसी जितना ज़्यादा होता है उतना कॉस्टली होता जाता है इंस्ट्रूमेंट. पिरानी गेज जो है दैट इज़ हाईली सेंसिटिव, सो दैट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव वन. आप 1 मिनट इसको भी थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए एंड उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में. अगर आप कुछ पानी के अंदर कुछ जनरली गेट्स जो होता है डैम्स, उसमें उसमें कितना फोर्स अप्लाई होता है वो सब इससे आप आइडिया लगा सकते हो. हॉरिजॉन्टल फोर्स जो होता है दैट इज जनरली रिटन एज यूनिट वेट ऑफ द लिक्विड इनटू एरिया ऑफ प्रोजेक्टेड सरफेस इन वर्टिकल. अगर आपकी गेट इंक्लाइंड है तो बस खाली एरिया को ही लेना है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई होता है. तो यू विल हैव टू टेक द वर्टिकल प्रोजेक्टेड एरिया. एंड एच जो होता है दैट इज द सेंटर ऑफ द प्रोजेक्टेड एरिया फ्रॉम टॉप ऑफ द वाटर सरफेस. ओके. जनरली आपका सेंटर जो होता है अगर मान लो कि फ्लैट प्लेट लिया है, उसका प्रोजेक्शन जो है उसके मिड पॉइंट पे आपका सेंटर होता है, लेकिन आप उसका हाइट लेते हैं टॉप ऑफ द फ्लूइड सरफेस. ओके. ये बात आप ध्यान रखना है. हॉरिजॉन्टल फोर्स इज सिंपली गिवन एज यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया इनटू हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द प्रोजेक्टेड एरिया. ओके. एंड वर्टिकल फोर्स जो होता है दैट इज क्लासिफाइड एज वेट ऑफ वाटर अबव द सरफेस इन वर्टिकल डायरेक्शन. गेट हमने देखा है उसके ऊपर जो वाटर लेवल होता है अप टू द फ्री सरफेस तक, उस सब का वेट मिला के आपको वर्टिकल फोर्स आता है. ओके. सो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू नो इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्स. वर्टिकल फोर्स उसको सिंपली कह सकते हैं कि यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम अबव द सरफेस इन वर्टिकल डायरेक्शन. ओके. तो 1 मिनट ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद इन दोनों को ऑब्जर्व कीजिए फॉर्मूलाज को. इस में इसी से आएंगे क्वेश्चन, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. And next we will discuss about the center of pressure. ये जनरली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स हम आगे जो देखे थे, इसका जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होता है इसके वर्टिकल प्रोजेक्टेड एरिया होगा सम क्यू से पी तक प्रोजेक्शन. राइट एंगल ट्राइंगल आप एज्यूम कर सकते हो. इसकी स्ट्राइट लाइन जो है क्यू टू पी तक वो प्रोजेक्टेड एरिया है, उसकी सेंटर जो है ये मान लो जी. तो दिस वाई बार जो है हाइट दैट इज दी टोटल सेंटर ऑफ द प्रोजेक्टेड हाइट. आपके हॉरिजॉन्टल फोर्स जो होगी एफ इज इक्वल टू गामा इंटू वाई बार इंटू एरिया ऑफ प्रोजेक्टेड दैट इज इन वर्टिकल प्रोजेक्टेड. एंड आपकी वर्टिकल फोर्स जो होगा इसका ऊपर जितना वेट है उतना ही है. पी टू क्यू देखो, आपको एक ट्रेपीजियम बना है, सो उसके ऊपर जितना क्वांटिटी ऑफ वाटर है उसकी वॉल्यूम इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर. मैक्सिमम वाटर पूछते हैं, आप डेंसिटी ध्यान में रख लीजिए, कभी कभी वो ऑयल दे देता है. आप जल्दी में 9.81 मत यूज़ करना, वहाँ पे आपको नंबर चले जाता है. दैट इज़ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक पीपल मेक. एंड नेक्स्ट आता है सेंटर ऑफ प्रेशर. ओके. सेंटर ऑफ प्रेशर होता है दैट इज़ द लोकेशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स.
हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्स जो होता है उन दोनों का रिजल्टेंट कंपोनेंट जो है उसका लोकेशन है जनरली। अगर आप टॉप सरफेस पे मेजर करना चाह रहे हो तो दैट विल बी कैलकुलेटेड एज वाई नॉट। जनरली वो जो होता है दैट विल बी बिलो द सेंटर ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स वैल्यू। तो उसको दिया जाता है वाई बार प्लस आई इंटू साइन स्क्वायर फाइव बाई ए इंटू वाई बार। तो वाई नॉट इज गिवन बाई आई साइन स्क्वायर थीटा बाई ए इंटू वाई बार। ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टेड एरिया एंड वाई बार हो गया सेंटर ऑफ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्रोजेक्टेड एरिया एंड आई हो गया खाली प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। आपको ओ के थ्रू नहीं लेना है, खाली प्लेट के लेना है, प्लेट के सेंटर के थ्रू। यहाँ पे भी लोग गलती कर लेते हैं, ओ के थ्रू नहीं लेना है आपको। पी क्यू का जो जी है ना सेंटर, उसके अबाउट न्यूट्रल एक्सिस आएगा, उसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया उतना लेना पड़ता है खाली। एंड साइन थीटा हो गया आपके वर्टिकल, दैट विल बी हॉरिजॉन्टल एंगल विथ रेस्पेक्ट टू द प्लेट। हाँ, इससे आपका जो आएगा सेंटर ऑफ प्रेशर दैट विल जनरली बी बिलो द प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टल फोर्स सेंटर। एक मिनट आप डायग्राम देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। Okay, now moving to the next. Next, we will be talking about the stability of the submerged and floating bodies. मान लो कि एक शिप है, दैट विल बी द फ्लोटिंग बॉडी। ओके, उसका आपने +1 +2 में पढ़ा होगा, स्टेबल अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कुछ भी वो सब। जनरली फ्लोटिंग बॉडी जो होता है उसमें सेंटर ऑफ बायंसी जो होगा दैट विल बी बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, जब वो शिप टिल्ट होगा, शिप की जो एक्सिस होता है वर्टिकल एक्सिस, जब मान लो कि आपकी शिप जो है टिल्ट हुआ है एंड द प्रोजेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ बायंसी ओवर द एक्सिस अपवर्ड्स एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज मेटा सेंटर। ओके, दिस विल एक्ट एज द रिस्टोरिंग मोमेंट। अगर मान लो कि बी की प्रोजेक्शन जो है इफ दैट इज अबव द जी, आप देख सकते हो कि टॉर्क इस साइड जा रहा है एंड रिजल्टेंट इस साइड जा रहा है, दैट विल एक्ट एज द रिस्टोरिंग और बैलेंसिंग टॉर्क। एंड मान लो कि आपकी जो मेटा सेंटर है इफ दैट इज बिलो जी, आप देख सकते हो शिप भी इधर हो रहा है एंड जी एंड एम भी, एम का मूवमेंट है दैट इज ऑल्सो इन द सेम डायरेक्शन। उस टाइम आपका क्या होगा, ओवरटर्निंग मूवमेंट हो जाएगा। सो आप इसे कह सकते हैं वेन एवर फॉर रिस्टोरिंग मूवमेंट मिनिमम क्राइटेरिया इज bm minus bg must be greater than or equal to 0. If that is less than, then there will be a overturning moment as shown here. Okay, this categorizes the stable and unstable equilibrium. And आपका जो bm part है that is known as the metacentric radius, and जो net part जो bm minus bg आपका आएगा mg, that is known as the metacentric height. bm जो है that is calculated as moment of inertia about the minor axis of the ship by volume submerged. Okay, next bg जो है that is simply आप बस शिप का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बायंसी जो है उन दोनों बीच का डिफरेंस है। सेंटर ऑफ बायंसी यहाँ होगी, सेंटर ऑफ बायंसी इज नथिंग बट दी सेंटर ऑफ मास ऑफ वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड।
तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर आएगा अपना फ्लूइड काइनेमेटिक्स। ओके, फ्लूइड काइनेमेटिक्स इज नथिंग बट द काइनेमेटिक एंड हाइड्रोडायनेमिक पैरामीटर्स। मतलब आपका वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हो गया काइनेमेटिक, एंड हाइड्रोडायनेमिक मतलब आपका फोर्स एनर्जीज हो गया, दैट आर हाइड्रोडायनेमिक पैरामीटर्स विच आर एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ जस्ट स्पेस एंड टाइम इज नोन एज फ्लूइड काइनेमेटिक्स। आपका काइनेमेटिक्स में दो मॉडल फॉलो किए जाएंगे। एक है लैग्रांजियन मॉडल, दैट इज पार्टिकल ओरिएंटेड। आपको एक पर्टिकुलर पार्टिकल को पिक करेंगे एंड उसके मोशन आप एनालाइज करेंगे। काफ़ी एक्यूरेट होता है लेकिन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। आपको ऐसा कई सारे पार्टिकल्स हैं एंड आप हर एक पार्टिकल की पाथ को सब ट्रेस करना है, दैट विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड ऑल। अलेरन जो है दैट इज़ नथिंग बट आप एक पर्टिकुलर पोजीशन लेंगे, उसका जो जितना पार्टिकल्स आ रहा है उन सबका पोजीशन ट्रेस करेंगे एट ए फिक्स्ड इंस्टेंट। ये थोड़ा लेस एक्यूरेट है लैग्रांजियन से थ्रू, एंड दिस इज सिंपल कंपेयर टू द लैग्रांजियन। लैग्रांजियन जो है उस कॉम्प्लिकेटेड होता है। ओके, once again kinematics is nothing but kinematic and hydrodynamic parameter of fluid particle expressed as a function of space and time. The Lagrangian approach is particle oriented model, Euler is a position oriented model. एंड काइनेमेट फ्लूइड में सबसे बेसिक वाला पार्ट होता है, फॉर ए फ्लो टू एग्जिस्ट कंटिन्यूटी इक्वेशन शुड बी सेटिस्फाइड। कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होता है दैट इज डो रो बाई डो टी प्लस डो रो यू बाई डो एक्स प्लस डो रो वी बाई डो वाई प्लस डो रो डब्ल्यू बाई डो जेड। ओके, इधर रो जो है दैट इज डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एंड यू वी डब्ल्यू आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। यू हो गया एक्स कंपोनेंट है, वी हो गया वाई कंपोनेंट, डब्ल्यू हो गया जेड कंपोनेंट। ओके, ये पूरा जो डिफरेंशियल है, इफ दैट इज इक्वल टू जीरो देन ओनली द फ्लो एग्जिट्स, एल्स कंटिन्यूम इज नॉट सेटिस्फाइड। फ्लो में भी आप दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला जो है यूनिफॉर्म फ्लो, दिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, एंड नेक्स्ट होता है स्टडी फ्लो, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम। मतलब यूनिफॉर्म फ्लो जो होता है, आप कोई भी स्पेस में कोई भी पॉइंट ले लो, उसका हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी या एक्सेलरेशन जो भी हो चेंज नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। एंड स्टडी फ्लो जो होता है, एक पर्टिकुलर सेक्शन लीजिए आप, उस सेक्शन पे वट एवर द टाइम में बी द velocity and acceleration must be same in magnitude and direction at a particular section for any time space given. नेक्स्ट इसमें एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर आता है स्ट्रीम लाइन्स। फ्लो जनरली जो होता है दैट टेक्स प्लेस अलोंग द स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन इज गिवन एज द tangent to the velocity vectors of the particle, एंड इसको मेंशन किया जाता है टू डायमेंशनल में जनरली, दैट इज गिवन एज v by u is equal to dy by dx। ओके, स्ट्रीम फंक्शन जो होता है उसको साइज से मेंशन किया जाता है, एंड u component of velocity given है minus dou psi by dou y, and v component is given as dou psi by dou y, and difference between any two streamlines gives the flow per unit width, that is q is equal to mod of psi 1 minus psi 2। ठीक है, फ्लो जो है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, सो उस पर हम मॉड लगा लेते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर स्ट्रीमलाइन। आप इसके थोड़ा ध्यान से पढ़िए, इसमें क्वेश्चंस काइनेमेटिक्स में इसी से क्वेश्चंस आने की चांस है काफ़ी।
एंड एक और होता है फॉर यूनिफॉर्म एंड स्टडी फ्लो स्ट्रीमलाइंस जो होता है दैट विल बी रिजिड। मतलब एक रॉड जैसा दिखेगा आपको, कुछ कोई भी जगह पे या कोई भी टाइम के बाद वो उसका पाथ चेंज नहीं होगा, एकदम फिक्स्ड रहता है। एंड वन मोर थिंग, स्ट्रीमलाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये दोनों इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है स्ट्रीमलाइंस में। इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे ईएससी प्री में। आप ये दोनों या मतलब ये पॉइंट आप ध्यान ध्यान रख लीजिए। एंड वन मोर आता है पाथ लाइन। इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल at various instants and can intercept each other. Path lines जो है that can be intersected and streamlines cannot. Okay. Next देते हैं deformation in a fluid. Deformation occurs only in unsteady flow. If the flow is steady, there is no deformation. Deformation तीन तरीके के होते हैं। एक होता है linear deformation, that is along the direction only. Okay. तो इसमें दिया जाता है एप्सिलॉन से मेंशन किया जाता है, that is simply given as dou u by dou x, dou v by dou y, dou w by dou z. Here deformation जो होता है that will be perpendicular to both the plane. फ्लो एक डायरेक्शन में ज़्यादा, डिफॉर्मेशन उसके परपेंडिकुलर में होता है। सो इसका दिया ये थोड़ा रोटेशन के सिमिलर होता है, लेकिन साइन इधर चेंज रहता है। शेयर डिफॉर्मेशन आप देख रहे तो दैट विल बी गिवन एज एवरेज इज 1/2 इंटू डो यू बाई डो वाई प्लस डो वी बाई डो एक्स। यू हो गया आपका वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वी हो गया आपका वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। ओके। एंड रोटेशन हो गया आपका हाफ ऑफ द कर्ल मान लो रोटेशन आप, मतलब 1/2 इंटू डो वी बाई डो एक्स माइनस डो यू बाई डो वाई। जेड डायरेक्शन की रोटेशन मान लो। ऐसा होता है एक्स और वाई एक्सिस में रोटेशन हो रहा तो उसकी जो कंपोनेंट होता है दैट विल बी अलोंग द जेड डायरेक्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है एक और पैरामीटर वर्टिसिटी। इसको एप्सिलॉन से ईटा से डिफाइन करते हैं। वर्टिसिटी इज गिवन एज कर्ल ऑफ ए वेक्टर। इट इज रिटन एज ट्वाइस एज रोटेशन, मतलब डेल क्रॉस वी बार है वर्टिसिटी का फॉर्मूला। रोटेशन का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ डेल क्रॉस वी बार। देन वन मोर पैरामीटर सर्कुलेशन एक और आता है, दैट विल बी वर्टिसिटी इनटू एरिया, और it is the integral circular of v velocity in along the path traveled by the particle. And next आता है potential function। a stream function का perpendicular direction में होता है। Here the fundamental relation is given as dy by dx is equal to minus u by v। को stream function में आता है dy by dx is equal to v by u। यहाँ पे आता है dy by dx is equal to माइनस यू बाई वी। ओके। एंड वन एक स्टैग्नेशन पॉइंट भी आता है। इट इज़ नथिंग बट द पॉइंट वेयर वेलोसिटी इज जीरो। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे, आपको कुछ रैंडम वेलोसिटी दे देंगे, एक ऑप्शन में आपको मिलेगा वेलोसिटी जीरो है। अब पूछेगा आपसे पूछेगा कि इसमें से स्टैग्नेशन पॉइंट कौन सा है। उसके लिए अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ नथिंग बट वेलोसिटी कंपोनेंट इज जीरो। ओके। नेक्स्ट फॉर इरोटेशनल फ्लो लैपलास इक्वेशन जो होता है दैट विल बी जीरो। लैपलास इक्वेशन इज गिवन एज माइनस डो स्क्वायर फाइव बाई डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर फाइव बाई डो वाई स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर फाइव बाई डो जेड स्क्वायर। इट इज नथिंग बट द डबल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल फंक्शन इन ईच कोऑर्डिनेट इन ईच एंड रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स। अगर ये आपका जीरो हो गया तो देन वी कैन से दैट द फ्लो इज इरोटेशनल। ओके। एंड वन मोर थिंग, रोटेशन ऑफ द फ्लूइड जो है दैट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द शियर स्ट्रेस। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।
नेक्स्ट आ गया अपना चैप्टर 4 दैट विल करस्पॉन्ड्स टू द डायनेमिक एंड फ्लो मेजरमेंट्स। हियर फंडामेंटल इक्वेशन जो होता है फ्लूइड डायनेमिक्स का, दैट विल बी ऑयलर्स इक्वेशन, दैट इज नथिंग बट dp by rho plus vdv plus dz, gdz इक्वल टू 0। इसको इंटीग्रेट करने से हमको बर्नौलीज इक्वेशन निकलता है, दैट इज नथिंग बट द एनर्जी इक्वेशन वी राइट, मतलब p by gamma plus v square by 2g plus z, दैट इज द एनर्जी हेड। वो आपको यूलर से डिफाइन होगा एंड ऑयलर इक्वेशन इज बेस्ड ऑन मोमेंटम कंजर्वेशन। आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके प्री में पूछा जाएगा ईएससी के, यूलर्स इक्वेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन। one more point, along the streamline the total mechanical energy is constant for a steady and uniform flow। आप along the line travel करने में एनर्जी का डिक्रीज नहीं होगा, ओके तो आपका क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी जो है दैट इज एनर्जी एट p by gamma plus v square by 2g plus z, that will always remain same। and Bernoulli's equation जो है that is derived from the gravitational force and pressure force only। if viscous force comes into play, then Stokes law is applied। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, विस्कस फोर्स जब आते हैं तभी स्टोक्स लॉ यूज करते हैं। बर्नौलीज जो इक्वेशन होता है उसमें खाली ग्रेविटेशनल और प्रेशर फोर्सेस होते हैं एंड ओलर्स इक्वेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन। these are the key points to take note on from here। नेक्स्ट ये हमने डिस्कस किया कि मैकेनिकल एनर्जी अलोंग ए स्ट्रीम लाइन इन ए स्टडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो विल रिमाइन कांस्टेंट, दैट इज वही एनर्जी हेड p by gamma plus v square by 2g plus z is constant। एंड इसमें p by gamma जो है उसको कहते हैं स्टैटिक हेड, एंड जो वेलोसिटी है उसको कहते हैं डायनामिक हेड, एंड जो z है दैट विल बी कैटेगराइज्ड एज हाइड्रोडायनामिक हेड। ये तीनों इंडिविजुअल टर्म जो है इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आप ध्यान रख लीजिए इसमें। p by gamma is static head, v square by 2g is dynamic head, and z is the hydrodynamic head। एंड एक और पार्ट आता है पीजोमेट्रिक हेड का, वो आप सॉइल मैकेनिक्स में पढ़े होंगे। पीजोमेट्रिक हेड इज गिवन बाय p by gamma plus z, that is static head plus hydrodynamic z, the combination is defined as piezometric head। नेक्स्ट आता है मेजरिंग डिवाइसेस, पिटॉट ट्यूब, दिस इज यूज्ड टू मेजर द stagnation pressure। piezometer is used to measure the hydrostatic pressure, that is stagnation pressure plus hydrodynamic pressure। next there will be pitot tube plus piezometer। अगर हम ये दोनों को कंबाइन किया अपना आउटपुट डिवाइस जो आएगा उसको कहते हैं प्रांडल पिटॉट ट्यूब, क्योंकि पिटॉट ट्यूब से आपकी जो स्टैग्नेशन प्रेशर है वो निकल जाएगी एंड पीजोमीटर से आपकी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो निकल जाएगी। अगर इस दोनों के बाद हम डायनामिक हेड निकाल सकते हैं, जैसे टोटल माइनस स्टैग्नेशन प्लस हाइड्रोस्टैटिक कर लेते हैं, तो अपना बाकी जो टर्म निकलेगा दैट विल बी हाइड्रोडायनामिक हेड, वहाँ से अपना वेलोसिटी निकल जाएगी। तो प्रांडल पिटॉट ट्यूब और पिटॉट स्टैटिक ट्यूब, दिस विल बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। ये इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट इसको ग्लांस कीजिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। And next, this is the flow measuring device for discharge।
obstruction flow meter is used for the flow measuring device. This is nothing but a tube. एक ट्यूब होता है, उसको बीच में हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं एंड वहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्टेड एरिया जो होता है वहाँ पे एक ट्यूब फिक्स करेंगे एंड जो नॉर्मल एरिया होता है वहाँ पे एक और ट्यूब फिक्स करेंगे, इन दोनों को कनेक्ट करते हैं. आप ये देख सकते हो, जब एरिया डिक्रीज होगा तब आपकी क्या वेलोसिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है दैट विल बी गिवन एज q इज इक्वल टू v इंटू. आपको यहाँ पे एरिया डिक्रीज हो रहा है लेकिन डिस्चार्ज कांस्टेंट है, तो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होगा. हम इसको मानते हैं कि टोटल हेड जो है दैट इज कांस्टेंट लेते हैं. फ्रिक्शन लॉस होता है जो भी है, इसमें वेलोसिटी की वेरिएशन की वजह से यहाँ प्रेशर की डिफरेंस जो है P1 P2 का डिफरेंस आएगा, तो उसके थ्रू हम डिस्चार्ज मेजर कर सकते हैं किसी भी फ्लो का. एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे जो डिस्चार्ज है दैट विल ओवर एस्टिमेट, क्योंकि जब फ्लो आता है कन्वर्ज एग्जैक्ट इस शेप में नहीं आता, यहाँ पे आएगा कन्वर्ज होगा, हम इस पॉइंट पे शुरू होगा डाइवर्स एंड दिस विल बी नॉर्मल. यहाँ पे जो फ्लो है दैट वोंट ऑक्यूपाई द एंटायर एरिया. यहाँ पे दिस विल ऑक्यूपाई लेस दैन द अवेलेबल एरिया, क्योंकि फ्लो जो है यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है एंड देर विल बी स्टिल बी कन्वर्जिंग, so there will be leftover gap in between that decreases, that overestimates the area. okay, जनरली इससे थ्रोट जो है उससे कम एरिया आता है फ्लो का उधर, क्योंकि कन्वर्जिंग कंडीशन की वजह से. तो ऑब्स्ट्रक्शन फ्लो मीटर ये कह सकते हैं कि ओवर एस्टिमेट्स दी डिस्चार्ज. एंड इसकी थियोरेटिकल जो फ्लो होता है दैट विल बी गिवन एज a1 a2 बाई रूट ऑफ a2 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर इंटू रूट 2gh. ओके, यहाँ पे a1 हो गया आपका फ्लो एरिया ऑफ द नॉर्मल पाइप क्रॉस सेक्शन एंड a2 हो गया आपकी थ्रोट क्रॉस सेक्शन. एंड जो h जो है दैट विल बी गिवन दैट h इज नथिंग बट द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2. आप एनर्जी इक्वेशन यूज कीजिए नॉर्मल पाइप सेक्शन पे और कॉन्ट्रैक्टेड सेक्शन पे, एंड आपको जो मैथमेट्रिक हेड डिफरेंस है नेट एनर्जी हेड आपका आएगा HM इंटू SM बाई SW बाई SM माइनस 1. SW जो है वर्किंग फ्लूइड का डेंसिटी है, SM जो है मर्क्यूरी का डेंसिटी है. जनरली जो ट्यूब कहते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर, उसमें हम मर्क्यूरी यूज़ करते हैं, तो अपना डेल्टा H आएगा SM बाई SW माइनस 1 इंटू H1 माइनस H2. ओके, नेट एरिया अपना आ गया वही है a1 a2 बाई रूट ऑफ a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, एंड इसमें रूट 2gh अपना वेलोसिटी, रूट 2g डेल्टा h अपना वेलोसिटी हो गया. एंड इसमें जो लॉसेस होता है दैट विल बी गिवन एज 1 माइनस CD स्क्वायर इंटू डेल्टा h. डेल्टा h इज द एनर्जी डिफरेंस, CD इज द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज. हेड लॉसेस जो है दैट विल बी गिवन एज 1 माइनस CD स्क्वायर इंटू डेल्टा H स्टार. ओके, नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं सेम वियना कॉन्ट्रैक्टा लीड्स टू द ओवर एस्टिमेशन ऑफ डिस्चार्ज. एंड नेक्स्ट पार्ट आता है मेजरमेंट के बाद मोमेंटम. इसमें कंट्रोल वॉल्यूम जो लेते हैं वो आप किसी भी शेप पे ले सकते हो, लेकिन जब ऐसा शेप बनना चाहिए कि वेलोसिटी जो है इनफ्लो और आउटफ्लो वो कंट्रोल वॉल्यूम का नॉर्मल होना चाहिए एंट्री पे और एग्जिट पे. ओके, एंड योर कंट्रोल वॉल्यूम कैन बी मूविंग, उसका मूवमेंट हो सकता है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. एंड इसका नेट फोर्स ड्यू टू द चेंज इन मोमेंटम इज गिवन एज m.v फाइनल माइनस m.v इनिशियल. Fn जो है आप इसको नेट फोर्स में ऐसा लिखे कि आप प्लस एक्स एक्सिस जो डायरेक्शन है उन सबका पॉजिटिव ले लीजिए एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस जो है या वाई एक्सिस उनको नेगेटिव ले लीजिए. एंड ये
वी एफ और वी आई का भी सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम आप फॉलो करना है। अगर पॉजिटिव एक्स या वाई एक्सिस में उनको पॉजिटिव मान लीजिए, एंड नेगेटिव एक्स एंड वाई को आप उनको नेगेटिव साइन लगा लीजिए। तो एंड वन मोर थिंग, मोमेंटम फ्लक्स गिव्स द टॉर्क, मतलब Fn into r is given as torque, that is defined as momentum flux. Okay, आज यहाँ पे खत्म करते हैं, and we will discuss in the next class. Hope you all are preparing well, and all the best. Practice for GATE 2022 with the Unacademy All India Mock Test for GATE 2022. Curated by top educators, based on the latest exam pattern covering the entire syllabus. Detailed performance reports with All India rank. Every Sunday starting January 2nd. Enroll now.